Ji, can you hear me clear? Bismillahirrahmanirrahim. Beta, today we are going to discuss the latest paper so far, that is February March 25. Can you hear me clear, Hassan and Srosh? Yes. Yes, sir. AS Physics latest paper. Now, can you share the question number, please? Whatever question you will mention, we will do the complete question. Ji, beta. Question number one. Okay, let's start with question. What is meant by accuracy of a measured value? Beta, accuracy means how close the measurements are with the actual value. Okay? So accuracy is closeness of the measured or observed value with the actual value. Okay, beta? Next, the two solid cubes A and B are measured to determine the density, length of side. Solid cubes. In cubes, all the lengths are same of their material or mass is given. Show that the calculated density for the material is this. So beta, first of all, we will use the formula density is equal to mass over volume, and for a cube, the volume is cube length cube. Now, the one thing important, mass is given in grams and length are given in centimeter, and they want us to be in kg per meter cube. So choice is yours. First, you find the density, then convert gram per centimeter cube into kg per meter cube by multiplying by 1000. Or you can straight away first change the grams and centimeter. Choice is yours. So what I would do, I will take the mass in grams and length in centimeters. It is cube, so centimeter cube. And what the answer will be, I will multiply it by 1000 to get the answer in kg per meter. Can you help me? What the answer will be? Sometimes it is rounded number given, right? So that's why I was asking. 8.73 into 10 raised to power 3. Okay, 8.73 times raised to power 3. So it is same. So you have to now respect your answer. kg per meter क्यूब. अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हो कि mass जो सा है वो आप straight away उसे convert कर लो kg में. तो ये ग्राम था, तो divided gram by 1000, the answer will be in kg per meter cube. Dividing each length, centi means 10 raised to power minus 2, or matlab, in other words, dividing by 100, that will be in meter now. The straight away answer will be the same. ठीक है? फिर next, असल चीज आ जाए. Calculate the percentage uncertainty in the density of material of cube A. Percentage uncertainty find करें. उसके लिए बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, वो डेंसिटी की आ जाएगी. अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है कि हमें, ये मैं वर्किंग आपके लिए शो कर रहा हूँ. स्ट्रेट अवे आई would have written the answer. Mass की percentage uncertainty divided by uncertainty is mass divided by mass multiplied by 100 plus length में uncertainty given है, तो उसकी percentage uncertainty as there is a power raised to power 3. तो जो पावर होती है उसको हम अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शनल या परसेंटेज से, वो हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ पुटिंग द वैल्यू, डेल्टा एम 0.01, सॉरी ये मैंने ऊपर वाले का लिख लिया, 0.5 है, and mass is 31 into 100, 3.
Change in uncertainty in length is 1.53. And let me tell you, normal uncertainty is one significant figure. लेकिन percentage uncertainty can be up to one decimal place. तो आपने आंसर बताना है up to one decimal place. Can you share me the answer, please? 2.3%. 2 point. 3%. Is it right, बेटा? ये क्रॉस चेक करने से it's better. Hasan, the density of the material of QB is determined to be this plus 6%. State explain whether cube A and cube B both made from the same material. जी बेटा, लुक उसने बताया कि 6% प्लस माइनस हो सकते हैं, तो इट मींस कि वी हैव टू सी कि ये तो 8.73 है, तो अब ए की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब वी हैव टू चेक कि इनमें जो परसेंटेज डिफरेंस है वो 6% है या नहीं है, इसका 6% है या नहीं। ठीक है, तो क्योंकि इसका 6% बताया है, तो अच्छा इनमें डिफरेंस कितना है बेटा, वी कैन चेक कि 8 9.2 10 raised to power 3 minus 8.73 is 6% of this। इसके रिस्पेक्ट से इससे डिवाइड कर देंगे, multiply by this, and can you tell the answer please, what percentage it is? 10 raised to power 3 तो स्ट्रेट अवे ऊपर से कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 9.2 minus 8.73 divided by 9.2 multiply by 100, 5.1%. तो 5.1% if it is coming, so ये तो उसने कहा था कि प्लस माइनस 6% हो सकता है, so that is within this which is less than 10 6%, so they can be considered to be made of same material। ठीक है बेटा, अच्छा अब they can be other method, they can be considered to be same material। अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरीली कि हम इसी तरह ही करें, हम ये भी कर सकते हैं, इसका 6% फाइंड करें कि लेट्स फाइंड द 6% ऑफ 9.2, और क्योंकि वो उससे कम है ना 8.73, तो बेटा हम सी देखें कि वो इसका 6% इसमें से माइनस करे तो क्या वो इसके विद इन आ रही है, तो कैन यू टेल इसका 6% कितना होगा बेटा? 552. 0 point 552। अच्छा 552, अच्छा मैं 0 पॉइंट क्यों लिख रहा था, 0.55 10 रेज टू पावर 3 में, क्योंकि वो भी 10 रेज टू पावर 3 में है ना सारी वैल्यूज, है ना, यस सर। तो कंपैरिजन करने के लिए, सो टू सी 9.2 माइनस 0.55 कितना हो जाएगा ये आंसर, इट इज 8.6 समथिंग 10 रेज टू 8.65। पावर। 8.67. ठीक है, तो वाकई वो उसके विद इन है, एक ये भी कर सकते हैं और स्ट्रेट अवे ये भी कर सकते हैं, 8.73 is what percent of 9.2? If it is less than 95 per 94%, greater than 94%, तो इसका मतलब वो विद इन है, तो कैन यू टेल मी ये कितना आंसर आएगा इसका? 94.9%. तो 94.9% मीन्स 95% है, तो 5% यानी विद इन 6% है ना। ठीक है, सो
we can answer the same question in many ways. चॉइस आपकी अपनी हो, ठीक है, मैथमेटिकली बस आपने बताना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी बेटा जी। हसन सरोज नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. टेक द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। एक मार्क इसका है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। द solid plastic cylinder floats in water. Cylinder is floating. It is used to support one end of a horizontal uniform beam AB. A hinge A acts like the pivot. ठीक है, यूनिफॉर्म बीम है, वर्ड यूनिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स सेंटर विल बी एट सेंटर ऑफ इट्स शेप, राइट बेटा जी। So total length is 6 meters and this is 5 meters. Person is distance x. Okay. फिर the beam has length वो given है and weight, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। The cylinder is floating vertically in the water. The top of cylinder is attached to the is center to the beam as horizontal distance 5 will be given and the cylinder applies a vertical force to the beam. बेटा सिलेंडर नीचे से फोर्स लगाएगा तो नीचे से फोर्स हमेशा हम अपवर्ड लगा सकते हैं और वो है 1300 और ये वेट हमने कंसीडर करना है 1700 न्यूटन। दिस a person of weight stand on the beam at point this if we given a force the beam is in equilibrium by taking moments about and determine the distance x from A to B। अच्छा बेटा जी, first of all look, the person stands 660 newton, beam is in equilibrium, we are knowing कि एक तो इस बीम का जो सेंटर होगा वो सीम्स टू बी समवेयर हियर मिडिल में, ठीक है। तो उसका सेंटर लुक्स टू बी देयर, इसका वेट यहाँ एक्ट कर रहा है 1700 यूनिफॉर्म बीम और वो 1700 न्यूटन फोर्स इज दिस फ्रॉम दिस शेप। एक ये हमें बस डिसाइड करना है कि पी वाकई सेंटर पर है या इधर है या इधर है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सो फार उसका जो सेंटर है वो बीम का कुछ यहाँ बन रहा है, राइट। क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है इट सीम्स टू बी सेंटर अबाउट सेंटर ऑफ 5 लेकिन वो क्योंकि एक्स है हमें कोई गैस नहीं है। तो एक डिसाइड कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास है 1300 और उसका डिस्टेंस है 5। कैन यू गेस बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे आप 16500। अच्छा, क्लॉकवाइज में 17 और इसका जो डिस्टेंस होगा हिंज से वो 3 होगा क्योंकि टोटल लेंथ ये है, तो इट विल मेक आई गेस 5100। अच्छा ये 6500 है, 165 नहीं था सॉरी। तो अब क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना ये लेसर है हमारे पास, इसका मतलब ये भी क्लॉकवाइज में ही एक्ट करेगा। बहरहाल वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, दिस इज 660। तो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल क्या है, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो बेटा 1700 will be multiplied by distance anti-clockwise movement will be 1300 which is multiplied by distance 5 और anti-clockwise में 1700 is multiplied by 3
plus weight is 660, which is multiplied by distance x. Now we can find the value of x. कितना हो जाएगा बेटा? 6500, 5100, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1400 divided by 660. Can you beta tell me? 2.1 meters. 2.1 1. meter is given, mentioned. Don't need to write the unit. अच्छा, ये हमें उसके वो इधर राइट और लेफ्ट होने की टेंशन नहीं लेनी थी इसमें. The bottom of the cylinder is submerged in the water to the depth y. ठीक है. The beam is still attached to the cylinder but not shown. Okay. The force from the beam. अब आप नोट करें, फोर्स फ्रॉम द बीम क्या है? जितना ये सिलेंडर बीम पे लगाएगा उतना ही बीम सिलेंडर पे लगाएगा. ठीक है. और ये बैलेंस कर रहा है. इसका मतलब ये है कि जितनी डाउनवर्ड फोर्स है उतनी अपवर्ड फोर्स होगी तो बैलेंस करेगा. लेट्स सी द स्टेटमेंट. द सिलेंडर हैज अ मास दिस एंड डायमीटर. द बीम exerts a vertical force. The cylinder is in equilibrium, right? Show that the upthrust acting on the cylinder is this. तो अब आप देखो बेटा, इस सिलेंडर पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक से ज्यादा. इसकी अपना एक इसका वेट होगा जो डाउनवर्ड है, एक ये फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड फोर्स जो बीम लगा रही है, और एक इस पे जो वाटर लगा रहा है अपवर्ड फोर्स. तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. तो डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर कौन सी है हमारे पास? एक 1300 है और एक उसका वेट है mg. तो बेटा mg कितना होगा हमारे पास? m होता है मास, मास गिवन है 11 और g की वैल्यू 9.8. तो मल्टीप्लाई दिस एंड देन ऐड दैम. कैन यू प्लीज हेल्प मी? 1407.9. 1407.9, 1408. करेक्ट बेटा जी? Yes, sir. ओके. द वाटर हैज द डेंसिटी. कैलकुलेट द डेप्थ y. अब बेटा हमें क्या इंफॉर्मेशन? अब थ्रस्ट पॉइंट करवाइए. अगला स्टेप उसी से रिलेटेड है बेटा जी. अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी वी. वी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड. तो वॉल्यूम नहीं गिवन, उसने हमें एरिया क्रॉस सेक्शन कहीं गिवन किया होगा. डायमीटर गिवन. तो बेटा जो वॉल्यूम है ना सिलेंडर का, उसका जो फॉर्मूला होता है वो रो पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो एच वो डेप्थ है विच इज इनसाइड, इसको वो वाई कह रहे हैं, वो हमने फाइंड कर. और अपथरस इज, आपने वो यूज करनी है जो उसने गिवन दी हुई, वो नहीं. जो आपका आंसर आया आपने वो यूज करना है अपथरस में, याद रखेंगे. वो राउंड ऑफ करता है, उससे फर्क आ जाता है आंसर में. 9.8 पाई 3.142. रेडियस स्क्वायर, डायमीटर है 0.78. तो बेटा आप, रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर और h इज y. राइट बेटा जी? कैन यू फाइंड इट? द पर्सन कैन, if you can try to calculate it, let's do it. 0.3. 0.3 समथिंग. हमने क्या शो करना था? उसने कीमत तो नहीं दी, नहीं फाइंड करनी, अप्रोक्सीमेट नहीं दिया. इज इट एग्जैक्टली 0.3? 0.30 something. चलो जो भी वैल्यू अब आ गई, लेकिन बेटर राइट अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक लिख लें.
क्योंकि मेजरमेंट भी 2 डेसिमल प्लेस तक वैसे गिवन हुई है, या हमारे सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो मेजरमेंट में है वो 2 है, तो आंसर में 3 के साथ कोई और नंबर भी होना चाहिए। Sir, it's 0.303. 303। जी चलो फिर ये राउंड ऑफ वैल्यू ही आ जाएगी। The person can stand anywhere between A and B. On figure, sketch the variation of the depth of the bottom of cylinder with the distance of the person from A for distances between 0 to 6 meter. Numerical values are not required. अच्छा बेटा, अब लुक, हमने क्या बताना, डेप्थ। ये डेप्थ है ना, दैट रिप्रेजेंट्स अपथ्रस्ट। अब आपने एक बात नोट करना है बेटा, कि जो पर्सन जीरो, लेट्स से पर्सन ए पर है, तो जब पर्सन का वेट ए पर होगा ना, तो इसका वेट काउंट नहीं होगा, क्योंकि पिवट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो नहीं। तो सिर्फ हमारे पास एक ये वाली फोर्स होगी 1300 जो अपथ्रस्ट लगा रही है, और 1300 नहीं होगी, उस वक्त कम हो जाएगी, डाउनवर्ड फोर्स ये। तो इसका मतलब हमारा ओवरऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी लेसर अगर ये पर्सन ए यहाँ पर हो, पर्सन पॉइंट ए पर होगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट कम होगा तो एंटी क्लॉकवाइज भी डिक्रीज होगा, मतलब अपथ्रस्ट विल बी लेसर। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी। इसका मतलब जब पॉइंट ए पर होगा तो अपथ्रस्ट विल बी लेसर, लेकिन कुछ होगी। और जब तक अपथ्रस्ट है तो डेप्थ भी है, तो इसका मतलब डेप्थ की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अब उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं की, तो वही मार्क इज लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब ना, एज द पर्सन विल बी मूविंग फ्रॉम ए से आगे जा रहा है, तो जो आगे जाएगा तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐड हो जाएगा वेट का इन दिस 1700। तो जब क्लॉकवाइज मूवमेंट इंक्रीज होगा तो बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज भी, यानी ये फोर्स जो अपथ्रस्ट है वो भी इंक्रीज होगी। इट मींस जो एज द पर्सन विल कीप मूविंग, द क्लॉकवाइज मूवमेंट, मूवमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इंक्रीज हो रहा है ना, तो बेटा वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब वो यहां तक पहुंच रहा है, यहां तक, या इवन वो यहां भी पहुंच रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ही होगा, तो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है हमारी अपथ्रस्ट, उसे टैकल करने के लिए कि टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसका मतलब अपथ्रस्ट इंक्रीज होगी तो फोर्स भी, जो डेप्थ है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। जितना डेप्थ ज्यादा होगा उतने अपथ्रस्ट ज्यादा होगी, तो इंक्रीज होगी। अब वो इंक्रीज होगी, अब वो इंक्रीज कैसे होगी, एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो क्योंकि बेटा ये वो एक स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट लाइन, इट मींस ये एक स्ट्रेट रिलेशन बन रहा है हमारे पास, सो इट मे शुड मेक अ स्ट्रेट लाइन लाइक दैट। राइट बेटा जी, ये 2 मार्क्स, आई reckon the graph should be like this। अगर उसको हम थोड़ा ज्यादा फॉर्मुलेट करना चाह रहे हैं, तो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो 1700 टाइम्स 3, जो अपथ्रस्ट है 6 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम ए, उस डिस्टेंस को हम डी कह लेते हैं, इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट तो 1300 है, उसकी जगह हम लगा लेते हैं रो जी, वॉल्यूम की जगह लगा लेते हैं एरिया इनटू डेप्थ टाइम्स दिस, उसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स है 5। अच्छा, अब y का और d का रिलेशन है, और y एक्सिस पर ही है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो अगर हम y को सब्जेक्ट बनाएं तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला कुछ आ रहा है, तो ये मेक्स अ स्ट्रेट लाइन। राइट बेटा जी, क्लियर बेटा जी? Yes, sir. ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा?
Yes, sir. I suggest question number 4. A device containing microwave emitter and receiver is placed in front of emitter and receiver are both at point P in a vacuum. Vacuum, you have to keep it in mind. Okay. Although it will not play that much part. Metal sheet है. The line XY is perpendicular to the device emits microwave of frequency this. When device is at point P, a stationary wave is formed. Stationary wave के formulas ध्यान में रखना now. Between the device and the sheet. Explain how the stationary wave including the nodes and antinode is formed. बेटा stationary wave कब होती है जब दो equal opposite wave of same frequency and amplitude they collide with it. अच्छा अब यहाँ पर इक्वल वेव्स और ऑपोजिट कैसे आएंगी कि वो एज इट कीप्स emitting जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो वापस आएगी तो वो दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी और क्योंकि वो एक ही सोर्स से आ रही है ठीक है तो और यहाँ पर वैक्यूम होने की वजह से उनकी पावर में लॉस नहीं आएगा एम्पलीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए याद रखें स्टेशनरी वेव ठीक है तो बेटा स्टेशनरी वेव इज फॉर्म जब दो इक्वल और ऑपोजिट वेव्स तो यहां पर वो इक्वल और ऑपोजिट वेव क्या होगी कि जो एमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द मिरर जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ज्वाइन हैविंग सेम उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्योंकि एक ही वेव को वही वेव रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ठीक है तो फिर देन स्टेशनरी वेव इज फॉर्म अब यहाँ ये कंडीशन रिक्वायर्ड होती है अब इसे हमने 4 मार्क्स के लिए कहना है तो हमें क्या इसमें एलैबोरेशन करनी है कि बस वर्ड्स थोड़े से हमें अब डिटेल में करने हैं कि इफ द माइक्रोवेव सोर्स keeps emitting the radiation ठीक है अच्छा अब हमें बताना है स्टेशनरी वेव कैसे बनती है उसमें नोड्स एंड एंटी नोड्स को मेंशन करना है ठीक है तो द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मेटल शीट joins with the waves coming from the source and the stationary wave is formed if we move the source क्योंकि रिसीवर भी इसी में है ना हमें नजर तो नहीं आती तो वी विल मूव तो हमें कैसे पता चलेगा स्टेशनरी वेव नोड्स आएंगे जहां एम्पलीट्यूड सिग्नल जीरो हो जाते हैं और एम्प्टी नोड कहाँ आता है जहां एम्पलीट्यूड और सिग्नल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज फॉर्म एंड व्हेन वी मूव रिसीवर और रिसीवर भी उधर ही उसी के साथ है सोर्स के साथ तो दे विल बी सम पॉइंट्स with zero amplitude those represents the nodes and there will be some point between two nodes yeah conductive nodes where there will be maximum amplitude those points will be representing the antinodes right beta ji clear बिकॉज क्योंकि नजर नहीं आती तो हमें इससे रिसीवर से ही डिटेक्टर से बताना है कि नोड्स और एंटी नोड्स का भी कैसे पता चलेगा क्लियर बेटा डन कैलकुलेट द Do we वेवलेंथ need to know how many? Do we need to know how many nodes and antinodes are possible in between the the emitter and reflective surface? नहीं बेटा बिकॉज देयर शुड बी अ डिस्टेंस मेंशन नो डिस्टेंस इज मेंशन वी हैव द फॉर्मूलाज ना f is equal to अच्छा इसके इन दिस सिचुएशन वी कैन यूज ये भी फॉर्मूला है हमारे पास वी शुड नो द लेंथ nv is equal to
2L or 4L. Though we are two type of formulas. So unless we are given the length or the distance, which is not mentioned, we do not need to tell the number of nodes and nodes, but there will be a number of nodes and nodes, right? You don't need to specify that number. You can mention there will be a number of points with zero amplitude representing the nodes and number of points between the nodes where the amplitudes are maximum representing the antinodes, right? Okay, sir. Wavelength is v, v is equal to f lambda. We are given the frequency. Microwaves travel at speed of light. This we should know. All the electromagnetic waves are traveling at speed of light in vacuum that, and the frequency is 6.3 gigahertz. So you should know giga. What do you mean by giga? I'm 10 Right. power 9. So we can get the formula. Can you tell the answer? Ji beta. What is the answer? 0.05. 0.0. Rounding it off. Yes. Okay. Now, next. At point P, the receiver detects the maximum amplitude of this. The device is moved slowly from point P along the XY and receiver detects a series of minimum maximum. The first time a minimum amplitude is detected by receiver is when the device is at point Q. At point it receives antinode. Maximum amplitude means antinode. And the first time it moves a minimum amplitude, that is node. The distance between node and antinode is quarter wavelength. So what will be the wavelength? You will divide it by 4. You have rounded it off. I better they should be must be two significant figures, although this will be your answer. Right, beta ji? Next, the intensity of the microwave emitted by device is increased. The frequency of the unchanged. Frequency is constant. The devices move slowly along the point xy until the next maximum amplitude is detected at point R. Now from R you are starting or intensity is increased. Maximum amplitude antinode as R. State and spin whether the distance QR is greater than, less than, or same. Beta, when you increase the intensity, the brightness will increase. Intensity means amplitude will increase, but the distance of wavelength and frequency do not change with this, and the frequency distance between Q and R. Q is node and R is antinode. It should be equal to quarter wavelength, and PQ was also equal to quarter wavelength. So distance remains the same. As in changing the intensity changes the amplitude, but the distance stays the same, right? The brightness will be increased, but the distance remains the same. Clear, beta? Yes, sir. Next question, please. The next question. Question 5, part B. Question 5. Stationary loudspeaker emits sound of constant frequency. So, speed of sound emitted is this. Determine the wavelength. So, we need frequency. तो frequency कैसे find करेंगे? We will find first the time period, and the time period is not a very smooth one, because if you keep counting 1,
2, 3, 4, 5. And other than 5 now, we have two and a half, one and a half, four boxes. You can say कि four divisions. अच्छा, this is 1 centimeter. Then four division will make it 0.8 centimeter. है ना? तो कितना है ये? 1, 2, 3, 4, 5.8 centimeter is the time period. और 1 सेंटीमीटर का मतलब इट्स सेइंग इज दिस 5.8 times 5 10 raised to power minus 4. It will be in seconds. Can you please share the answer? It is 2.9 10 raised to power minus 3 seconds. Yes. तो Yes, sir. फ्रीक्वेंसी क्या होएगा बेटा? 1/टाइम पीरियड. और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो इससे वेवलेंथ फाइंड. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो वेवलेंथ इज v ओवर f. आप ये भी तो कर सकते हो. ये 1/f इज टाइम पीरियड टाइम्स टाइम पीरियड. तो आप स्पीड को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो टाइम पीरियड की वैल्यू से. चॉइस इज योर्स कि आप वर्किंग को इंक्रीज करें अपनी. बेटर यूज दिस. तो वेवलेंथ इज फाउंड. The loudspeaker now moves in a straight line while emitting the same sound of constant frequency. The period of the trace CRO increases continuously. On the CRO increases. बेटा टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज होने का मतलब टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है. और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कब होती है? दिस इज रेड शिफ्ट. जब हम सोर्स ऑब्जर्वर से दूर मूव हो रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ ऑब्जर्वर हमारे पास कहां पर है? माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज प्लेस. वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो अब हमें मीन्स कि इट इज ऑब्जर्विंग रेड शिफ्ट. और रेड शिफ्ट कब होती है? व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे. सोर्स, इट मीन्स द सोर्स इज मूविंग away from microphone. Right, beta ji? Clear? Yes, sir. Next question, please. Sixth question. Let's question number 6 करते हैं. Electricity is important. A cylindrical copper wire of length given है और current भी given है बेटा. Next, resistance भी given है, current given है. The total number of charge carrier n. ये n है. कैपिटल n में स्मॉल n में फर्क होता है. ये n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर्स और स्मॉल n होता है वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम. द रेजिस्टिविटी इज गिवन. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स दिस. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर है. तो R तो गिवन है, I भी गिवन है. I इज 0.85 और R है 3.3 मिली ओम. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. मिली मीन्स 10 raised to power minus 3. Can you please share the answer? 2.8 times 10 power minus 3. 2.8 minus 3. Okay. Volt. Again telling me rounded value. Show that the cross section area. बेटा area कहाँ involve है? Resistivity is given. तो resistance is equal to rho L over A. तो हमें लेंथ भी गिवन है, एरिया हमने फाइंड करना है.
तो उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, रीअरेंज पहले कर लिया करो बेटा आप लोग वैल्यूज को। तो इट विल मेक रो एल ओवर आर। Resistivity is given to be 1.8 10 raised to power minus 8. Length is 0.24 meter. Resistance is 3.3 10 raised to power minus 3. Now you can solve it. Show that the number of density charge carriers. तो नंबर डेंसिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं स्मॉल एन को। तो स्मॉल एन इक्वल होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ क्या होगा बेटा, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना, तो एरिया इंटू लेंथ। तो जो हमने ऊपर एरिया कोसेशन फाइंड किया उसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन की वैल्यू इज गिवन, कैपिटल एन कितनी गिवन है, 2.6 10 raised to power 22, और लेंथ इज गिवन टू बी 0.24। एरिया की वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ आएगी आपने वो यूज करनी है, ये उसने जो बताई होती है वो राउंडेड वैल्यू होती। तो बहरहाल अभी मैं यही लिख देता हूँ टू सेव द टाइम कि इसके क्लोज ही होगी, अप्रोक्सीमेटली इतनी ही होगी हमारी आंसर -6। यू कैन गेट द वैल्यू स्मॉल एन, राइट बेटा जी। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो देखो ये स्मॉल एन ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एन ए बी ई, वी क्यू भी कर सकते हो। तो उसने खुद बता दिया वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में हो तो क्यू की बजाय ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वी स्पीड है, तो ये हमने फाइंड करना है। I इज इक्वल टू एन ए ई, बेटा आई करंट है और करंट वाज 0.585 एम्पेयर इफ वी आर नॉट मिस्टेकिंग, यस। और अब स्मॉल एन की वैल्यू ऊपर से एरिया भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, ई की वैल्यू आपने 1.6 10 raised to power -19, और एरिया के लिए फिर मैं राउंडेड वैल्यू यूज कर रहा हूँ जो उसने गिवन थी 1.3 10 raised to power -6, ठीक है। और स्मॉल एन की वैल्यू जो यहाँ से आंसर आएगा, और वो भी मैं उसकी वैल्यू राउंडेड जो सी है ना वो यूज कर रहा हूँ 8.3 10 raised to power 28। लेकिन आई सजेस्ट कि जो आपका आंसर आया होता है आप अगले पार्ट में वही यूज किया करो, राउंड वैल्यू उसकी वैल्यूज मत यूज किया करें, अपनी वैल्यूज यूज किया करें जी। फिर इट सेज अ कॉपर वायर क्यू हैज volume, same volume, but non-uniform radius. The radius, but non-uniform radius, the radius r at one end is wire q is the same as the radius of p. Radius r2 is lesser than r1. नजर आ रहा है? State and spin how the resistance of wire q compares with the resistance this. अच्छा जी, what is copper wire has the same volume. Volume same है. So it was having throughout, इनिशियली वो सेम था, बट अब यहाँ पर रेडियस ज्यादा है और एक तो रेडियस कम हो। The R2 is lesser than R1. State and explain how the resistance of wire Q compares with the resistance of P. देखो बेटा, one thing, volume is made up of two things, area into length. तो when you decrease the area ना, to keep the volume constant, हम जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे तो लेंथ विल इज नीडेड टू इंक्रीज। अच्छा वन थिंग,
resistance is directly proportional to length and inversely proportional to. So area this length इंक्रीज करे और एरिया डिक्रीज करो, गौर से देखो रेजिस्टेंस एरिया के साथ इन्वर्स होती है, तो डिक्रीजिंग एरिया विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस और लेंथ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इंक्रीजिंग लेंथ विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस, तो इट विल हैव हायर रेजिस्टेंस. So the new wire, this is 4 marks. ठीक है, तो 4 marks, how would you get the 4 marks? Okay, by narrowing the wire Q, this is wire Q, at one means you are decreasing the area, but decreasing the area at says the volume is same, so it means the length will be increased. ठीक है, so it will have a larger length and smaller cross section area, and as resistance is equal to rho L over A, or you can mention resistance is proportional to L over A, increasing the length will increase the resistance, area decreasing the area will increase the resistance. So both combine to give you a higher resistance of wire Q as compared to wire P. Right, beta ji? Clear? On sketch a graph of the variation of the average drift speed of the chart carriers with this. Or no values are required because we are not given the values. So drift velocity का जो formula होता है I is equal to NAVE और V is equal to I over NA. तो बेटा उसके साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब एरिया डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो डिप वेलोसिटी जीरो से शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इट विल इंक्रीज. एक और चीज भी है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स का है, तो उसमें क्या चीज चेंज हो रही है, रेडियस चेंज हो रहा है, तो जो एरिया होता है वो पाया स्क्वायर है. वी कैन चेंज दिस फॉर्मूला. So as we know, एरिया डिक्रीज होगा, करंट तो एक ही होता है एक बार में, तो एरिया डिक्रीज होगा स्पीड विल इंक्रीज, लेकिन ये रेडियस का स्क्वायर है क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है और स्क्वायर वाला जो रिलेशन होता है वो कर्व्ड होता है, ठीक है, तो ये एक कर्व होएगा ऊपर की तरफ. अब एक पॉइंट है जस्ट मेरे ज़हन में आ रहा है कि उसे जीरो से शुरू होना चाहिए कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम सम हायर वैल्यू. सो एक स्क्वायर कर्व रिलेशन आ रहा है हमारे पास, स्पीड शुड बी इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एंड एक्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्पीड इंक्रीज हो रही, तो यहाँ भी कुछ स्पीड है, यानी यहाँ भी देयर वुड बी सम स्पीड, अगर लेट्स से वायर इज कमिंग तो जीरो नहीं है, तो it should start from a higher value but should be a curve. Curve is because there is a relation of square. जब भी स्क्वायर रिलेशन है इट गिव्स यू, और इंक्रीज हो रहा है यानी ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ ही, और स्क्वायर है तो ज्यादा जल्दी इंक्रीज होएगा, ठीक है, तो कर्व अप होएगा. राइट बेटा जी? क्लियर? At distance from r is increasing, speed is increasing. So this is how the graph should be. Will it be clear beta ji? Yes, sir. Okay. Any problem? Can that be all for today? Sir, just question 7, the last part.
ओके, थर्मल एंड दिस विल बी, अच्छा अल्फा निकलता है तो क्या होता है बेटा? द, अब ऊपर वाला नंबर 4 लेस हो जाता है, तो लेस होने से पहले मतलब वो 4 ज्यादा होगा, और नीचे वाला नंबर 2 लेस हो जाता है, तो 88 था, इट विल कम टू बी 86, यानी इन दोनों को ऐड करके यहाँ आना चाहिए था। तो इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ, और इन दोनों का टोटल वो यहाँ 88 के इक्वल होना चाहिए। तो आप यू कैन सोल्व एनी वे by considering momentum, calculate the speed of nucleus r after the decay। अच्छा जी, उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है? सो स्टेशनरी डिकेज इनटू टू एंड दिस स्टेशनरी था, यानी इनिशियल टोटल मोमेंटम वाज जीरो, द अल्फा पार्टिकल हैज दिस स्पीड। तो कंसीडरिंग द मोमेंटम, देखो जब भी एक ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं तो दोनों के मोमेंटम इक्वल होते हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो उसने डायरेक्शन की स्पीड पूछी है, इसलिए हम डायरेक्शन को छोड़ देते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2 व्हेन इट हैपेंस, जब एक ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। m1 को अगर आप अल्फा कह ले तो उसका मास 4 टाइम्स u है, और उसकी स्पीड है 1.5 10 टू पावर 7। तो m2 की जो r है उसका जो मास है वो 220 टाइम्स u है, और उसकी स्पीड फाइंड करनी, तो u से कैंसिल हो जाता है, तो बस 222 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दिस विल गिव यू द आंसर। यानी ये हो जाएगा 6 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 222 v। नेक्स्ट, थ्री क्वांटिटीज दैट आर कंजर्व ड्यूरिंग द डिके। देखो बेटा जी, क्वांटिटीज कंजर्व होती हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक ये जो हमने ऊपर किया था ये मास नंबर है, और एक चार्ज नंबर। मास नहीं कहना, मास नंबर कहना है, बिकॉज रियल में इसमें एनर्जी आएगी और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मास नंबर एंड चार्ज नंबर, these are the quantities। Let me tell you, saying mass ना is not a good answer। क्यों? क्योंकि जब भी डिके होता है ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कम फ्रॉम कोई ना कोई मास लॉस होता है। saying mass number and mass is different, right बेटा जी? क्लियर? Yes, sir. जी, Surosh, will you be able to understand? Yes, sir. Okay बेटा जी, can that be all for today? अच्छा, अब Yes, ना sir. एट ए लेवल ना, ये सम टाइम विल से एक कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन जब हम ये न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वी से के, और क्वांटम फिजिक्स में भी जो आप A2 में पढ़ोगे, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो, एनर्जी मास में, तो वहां मास एनर्जी इज कंजर्व, खाली मास नहीं। अगर अगर आप यहाँ पर कोई क्वांटिटी ऐड करना चाहते हो, मैथ्स नंबर आई वुड से, लेकिन अगर मैथ्स की जगह खाली मैथ्स नहीं कहना, मैथ्स आप मैथ्स एनर्जी कहना है। सिंपली सेइंग मैथ्स और सिंपली सेइंग एनर्जी इज नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। उसे कहेंगे मैथ्स एनर्जी, और चार्ज इज कंजर्व, ये तो इन ऑल सिचुएशन इज कंजर्व। ठीक है, मोमेंटम आर कंजर्व बिकॉज हमने यूज ही यही किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऊपर। क्लियर बेटा जी? Yes, Yes, sir. sir. That is all from my side. Allah Hafiz. Allah Any Hafiz. Allah question you can ask?